हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान। आज हम फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स और जीके लाए हैं, आसाम जीके लाए हैं। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड विथ योर फ्रेंड्स। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि 16 अप्रैल 2020 से है। व्हेन इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड छागस डिजीज डे ऑब्जर्व्ड? व्हेन इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड छागस डिजीज डे ऑब्जर्व्ड? क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड कोवसैक? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड कोवसैक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the first state or UT to start pool testing of COVID-19 samples? Which is the first state or UT, Union Territory, to start pool testing of COVID-19 samples? Question number 4 है, who are the 5 Indian American that has been awarded Guggenheim Award 2020? Next question है, which ministry has launched All India Agri Transport Call Center? Which ministry has launched All India Agri Transport Call Center? Question है, who has been appointed the new MD and CEO of Paytm General Insurance? Who has been appointed the new MD and CEO of Paytm General Insurance? Next question है, which app is the world's fastest app to reach 50 million downloads? Which app is the world's fastest app to reach 50 million download? Question number 8 है, which international organization published State of World's Nursing Report 2020? Which international organization published State of World's Nursing Report 2020? कल आपको मैं अपलोड नहीं दे पाई, तो मैं दोनों का करंट अफेयर्स कवर करने वाली हूँ, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल। तो अभी 17 अप्रैल का है। Which film has launched the nearby spot? Which film has launched the nearby spot? Next question है, which industrial organization has released the exit from lockdown report? Which industrial organization has released the exit from lockdown report? Next question है, which country has approved the sale of Harpoon anti-ship missile and torpedoes to India? Which country has approved the sale of Harpoon anti-ship missiles and torpedoes to India? Next question है, which ministry has announced a training program for SARC health professionals? Which ministry has announced a training program for SARC health professionals? Next question है, who introduced the Bangla calendar? Who introduced the Bangla calendar? Next question है, which ministry has released the Sahyog mobile application? Which ministry has released the Sahyog mobile application? Question number 7 है, what is Chitra Gene Lamp N? What is Chitra Gene Lamp N? Question number 8 है, which regulatory body has launched OB-CAS? Which regulatory body has launched OB-CAS? Question number 9 है, who has been named the ambassador of WWF India? Who has been named the ambassador of WWF India? So मैंने आज आपको 16 अप्रैल और 17 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर किया है, क्योंकि कल मैं आपको अपलोड नहीं दे पाई, कुछ नेट इशू के, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से। तो ये है मेरे करंट अफेयर्स परसों का और कल का। अभी मैं आपको असम के कुछ जीके बताने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, in which district सैनिक स्कूल इज़ लोकेटेड? in which district सैनिक स्कूल इज़ लोकेटेड? आंसर है ग्वालपाड़ा। ग्वालपाड़ा में सैनिक स्कूल लोकेटेड है असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट असमीज रोमांटिक पोएम बोन कुंवरी वॉज रिटन बाय चंद्र कुमार अगरवाला। द फर्स्ट असमीज रोमांटिक पोएम बोन कुंवरी वॉज रिटन बाय चंद्र कुमार अगरवाला। याद कैसे रखेंगे? रोमांटिक चंद्र, sometimes we say ना मूनलाइट डिनर और समथिंग रोमांटिक, सो रोमांटिक चंद्र कुमार अग्रवाला, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विच वन इज़ नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ बराक वैली इन असम? मैंने ऑप्शंस नहीं दिया है, लेकिन अगर ऑप्शंस रह गया तो दिमा हसाओ बराक वैली में नहीं गिरता है, ठीक है। दिमा हसाओ बराक वैली का कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट नहीं है। दिमा हसाओ का डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर है हाफलॉन्ग, ठीक है। दिमा हसाओ का है हाफलॉन्ग। हाफलॉन्ग को हम लोगों ने पढ़ा था, वो है स्विट्ज़रलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हाफलॉन्ग को स्विट्ज़रलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। तो हाफलॉन्ग है दिमा हसाओ का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर भूपेन हजरिका वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा? वो है 1993 को। 1993 को भूपेन हजरिका वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 16 अप्रैल 2020।
क्वेश्चन था व्हेन इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड छागस डिजीज़ डे ऑब्जर्व, वो है 14 अप्रैल को फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड छागस डे किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि फर्स्ट ब्राज़ीलियन पेशेंट वाज डायग्नोस्ड विद द डिजीज़। किसने किया था ये डिस्कवरी? कार्लोस रिबेरो जे छागस, इस डॉक्टर का नाम है जिसके नाम से ये डिजीज़ नाम दिया गया है। ठीक है, इस डिजीज़ को साइलेंस एंड साइलेंस डिजीज़ भी कहा जाता है, ये याद रखिए, साइलेंस एंड साइलेंस डिजीज़ छागस डिजीज़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप कोवसैक, DRDO ने इसको लॉन्च किया है। DRDO ने, इसका नाम क्या है? इसका क्या है? ये है कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क, कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क। ठीक है, तो ये कहाँ से किया गया है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद। ठीक है, DRDO ने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद के साथ मिलके कोलाबोरेशन विद दिस पीपल इन हैदराबाद, इन्होंने कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क किया गया है, ये डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट विच इज़ द फर्स्ट स्टेट और यूटी टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 सैंपल्स? उत्तर प्रदेश। तो पूल टेस्टिंग क्या है? यहाँ पे क्या होता है, आपका लोगों से एक ग्रुप लिया जाता है पीपल के, वहाँ से उनको सैंपल्स लिया जाता है, फिर वो सैंपल को टेस्ट किया जाता है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव निकला तो उस ग्रुप के जो पीपल है जिससे सैंपल्स लिया गया है उन सभी को नेगेटिव कहा जाता है। अगर सैंपल इज़ नेगेटिव, इफ द ग्रुप सैंपल इज़ नेगेटिव, देन द पीपल हु आर देयर इन द ग्रुप आर ऑल्सो टर्म्ड एज दे आर कोविड नेगेटिव। ठीक है, तो वो लोग भी कोविड से अफेक्टेड नहीं है, ऐसे किया जाता है। अगर पॉजिटिव है तो ग्रुप का सैंपल अगर पॉजिटिव है तो ग्रुप के जो मेंबर्स है उसे भी पॉजिटिव माना जाएगा। तो नेक्स्ट है हु आर द 5 इंडियन अमेरिकन दैट हैज़ बीन अवॉर्डेड गuggenheim अवार्ड 2020? वो है कविता रामानंद, प्रदीप शर्मा, मुकुल शर्मा, तेहरा कुतुबुद्दीन, दिलीप दा कुन्हा। तो ये 5 नाम हैं जो गuggenheim अवार्ड 2020 मिला है उनको। कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है कि 4 नाम देंगे तो ऐसा आपको क्वेश्चंस बताया जाएगा कि इनमें से कौन है जिसको नहीं मिला या इनमें से कौन है जिसको मिला। तो आपको 5 नाम थोड़ा बहुत आपको देखना है, जैसे कविता, प्रदीप, मुकुल शर्मा, तेहरा और दिलीप दा। तो इन लोगों को नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द बांग्ला कैलेंडर? अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था बांग्ला कैलेंडर इन 1556। किस लिए? क्योंकि उस टाइम पे वो लोग कुछ टैक्स लेते थे, लैंड टैक्स लेते थे फ्रॉम जमींदार से इन बंगाल। तो उसको उस टैक्स कलेक्शन को ईजी करने के लिए उन्होंने क्या किया था? बांग्ला कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था इन 1556। याद रखिए 1556 को अकबर का रूल चला था। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन? वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ चित्रा जिंक लैम्प एंड? वो है कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, ये कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। ठीक है, इट यूजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस लूप मेडिएटेड एम्पलीफिकेशन फॉर वायरल न्यूक्लियस। इसका लैम्प का फुल फॉर्म है लूप मेडिएटेड एम्पलीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लियस, RT लैम्प। ठीक है, इसका कॉस्ट कितना होता है? 1000 रुपीज़ होता है। इसमें रिजल्ट कैसे मिलता है? RT-PCR माने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से रिजल्ट मिल जाता है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है विच रेगुलेटरी बॉडी हैज़ लॉन्च्ड ओबिकस? RBI। ओबिकस का फुल फॉर्म है ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड द एम्बेसडर ऑफ WWF इंडिया? वो है विश्वनाथन आनंद। कौन है ये? चेस प्लेयर है, नंबर 1 चेस प्लेयर है। और WWF का 50 ईयर्स हो गया है फॉर कंजर्वेशन इन इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड, मतलब वाइल्ड लाइफ को जो कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो 50 ईयर्स इसका हो गया था। सेटअप हुआ था इसका 27 नवंबर 1969 को। ठीक है, याद रहेगा। तो मेरा आज का और कल का करंट अफेयर्स मैंने कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।